Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. We will discuss today that about the spring and spring constant. Period of the oscillation with the help of the spring constant, or what will happen if two springs are connected in series or they are connected in parallel, then what will be the period of oscillation. Then we will discuss what will happen if the spring is cut into number of pieces. Then what will be force constant of one piece, and what will be period of oscillation with the help of that one piece. So these things will be our points of discussion in this period. Friends, we know that if the spring of any length is suspended from rigid support and then some mass is attached to it, okay, and now because of this mass this spring gets elongated, है ना. स्प्रिंग तो इलोंगेट होनी है, थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है, मानो इतनी इलोंगेट हो गई. तो अब ये नई पोजीशन हो गई. मैं इस मास को ऐसा लगाता हूं, ऐसा मैं हटाओगे जरा पहले डायग्राम में से मास को, क्योंकि हाँ, फर्स्ट केस है बस स्प्रिंग इज अटैच्ड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. Because of its own weight, it might be elongated by some length, but here we will consider mass of the spring is approximately zero or negligible. इसलिए अभी आज हम शुरू में कम से कम स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं करेंगे. चलो, तो अब ये मास सस्पेंड किया तो ये हुआ इसका मास के कारण इलोंगेशन, मान लेते एक्स नॉट. Now when this mass is pulled down through small distance x, ये मेन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे अगर ये मास को हमने खींच लिया तो ये मेन पोजीशन, ये असल में मेन पोजीशन है. मेन पोजीशन मतलब वेट नीचे एंड फोर्स ऊपर, ये दोनों सेम है. हेंस F इज इक्वल टू, मतलब दो फोर्सेस, कौन से रे? दो फोर्सेस, एक है mg नीचे और दूसरा F इज इक्वल टू kx ऊपर. नॉट kx बट इट इज kx नॉट. सो हियर if this mass is now pulled down through the distance x, then net force at this new position is equal to k into x plus x naught in upward direction while weight in a downward direction. So as soon as we release it, मतलब हमने ये अभी खींच के रखा है, वो छोड़ देने के बाद, soon after releasing the mass from new position, net force acting on the block, net force acting on the mass is equal to net force is equal to k into x plus x naught in upward direction minus mg in downward direction. So here this kx plus kx naught minus mg, but from the first case, from equilibrium case, we get mg is equal to kx naught, isn't it? And therefore this is equal to 0. If it is 0, then force net is equal to only kx, and the direction of this kx is upward direction towards mean position, and then we say that, or therefore we say that force net is equal to minus kx. ये तो हमारा फॉर्मूला, ये तो हमने देख लिया था. हमारा F net is equal to minus kx आ गया, आणि आपल्याला
हे माहिती आहे period of linear SHM by means of this spring is equal to 2 pi root of m by k, where k is force constant, है ना। चलो t is equal to 2 pi root over m by k is a period। चलो ये बात सबको पता है क्या नहीं पता? यस इट इज नोन एवरीवन। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं मेरे इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इंक्लाइन सरफेस पे रख देता, कैसे? मानो ऐसा ही इंक्लाइंड सरफेस है, यहां ये अपना इंक्लाइंड सरफेस, यहां ऐसा रिजिड सपोर्ट है, बोला क्या? और ये है अपनी स्प्रिंग, ओके, एंड मास इज अटैच्ड फ्रॉम दिस फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। क्या ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अगर नहीं है तो यहां पर ये ऑसिलेशन हो सकता है कि नहीं इस डायरेक्शन में? हाँ, along the surface that block will be oscillated. Let this is the inclined surface, here is the rigid support, and this is my spring with block attached to it। ये ब्लॉक है, अगर ये थीटा है तो यहां इसका वेट mg साइन थीटा होता, जबकि ये डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये वेट का डायरेक्शन है ना। इज इट सो? अब ये mg साइन थीटा के कारण शुरू में ही कुछ इलोंगेशन हुआ होगा और अभी यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो शैल वी से kx नॉट इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा, है ना। इज इट सो? ओके, अब हम लोग इसे थोड़ा सा फर्दर पुल करते नीचे, मतलब x डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा ज्यादा दे दे। x डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देने के बाद एडिशनल फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आया भाई? पहले kx नॉट फोर्स था स्प्रिंग के कारण, अब kx आ गया। ये दो फोर्सेस किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। और mg साइन थीटा, mg साइन थीटा नीचे के डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स विल बी अपवर्ड फोर्स kx नॉट प्लस kx माइनस mg साइन ऑफ थीटा, पर kx नॉट इज इक्वल टू mg साइन थीटा है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फॉर्मूला होगा नेट फोर्स का kx, मतलब जितना इलोंगेशन मीन पोजीशन से होगा उस पे ही फोर्स रहता है। अंडरस्टूड? आप देखो, इसे हम हॉरिजॉन्टल रखते तो ही कुछ फर्क गिरता क्या? फिर ये स्मूथ सरफेस है, ये अपनी कॉइल है ना, ये ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं x डिस्टेंस से, तो भी नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स kx ही होगा। और अगर नेट फोर्स kx है तो पीरियड का फॉर्मूला सारे केसेस में जितने हमने अभी तक देखे उतने केसेस में m बाय k होता है। मग आता हे हॉरिझॉन्टल ठेवलं काय, वर्टिकल ठेवलं काय, पीरियड एवढाच आहे। तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आता इथे फक्त कशावर डिपेंड आहे? स्मॉल एम आणि त्या स्प्रिंगच्या प्रॉपर्टीवरती। समजा जर कधी एखाद्या, आता तसं नीट लेवलला पण या मास ऑफ द स्प्रिंगचा रेफरन्स येत नाही, परंतु की फॉर्म्युला सांगतो तुम्हाला। समजा मास ऑफ द स्प्रिंग कॅपिटल एम जर तुम्ही कन्सिडर केलंच, मास ऑफ स्प्रिंग
कन्सिडर जर केलंच तर कॅपिटल टी म्हणजे पिरियड ऑफ ऑसिलेशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला डायरेक्ट ध्यानात ठेवायचा आहे. त्याचा प्रूफ आणि डेरिवेशन आमच्या इकडे नाही. कैपिटल M/3 कंसिडर करायचं डिवाइडेड बाय दिस के. कैसे कैसे आपको पता है कि अगर एखादी स्प्रिंग है मेरे पास, है ना, मान लो कि मेरे पास ये ऐसी स्प्रिंग है, ये खुद के वेट से भी तो डिलोंगेट होती है ना रे दोस्तों. इसे थोड़ा अभी कुछ इलांगेट किया है, इससे थोड़ा कुछ मास सस्पेंड किया है. ये तो खुद के वेट के कारण. ये अगर मैं पूरा छोड़ देता तो ये बहुत लंबी हो जाती नीचे, है ना, है क्या नहीं. हाँ, तो ये थोड़ा सा, तो ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद वो मास 1/3 लिया जाता है अपने फॉर्मूले में, अगर मास ऑफ द स्प्रिंग कंसिडर करते तो. ओके, चलो हे ध्यानात ठेवताल तुम्ही. आता प्रश्न आहे की जर का समजा मी गेलो मून वरती किंवा मार्स वरती, इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन द अर्थ, मून एंड मार्स, मून एंड मार्स, क्योंकि आजकल मार्स पे जाने की होड़ लगी है ना, है क्या नहीं. अमेरिका गया, चाइना गई, इंडिया ने भी भेज दिया है अब मार्स मिशन बोल के. तो ये दोस्तों, अर्थ पे अगर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी है तो मून पे कितना होगा, मार्स पे कितना होगा. What will be period of oscillation of the mass spring system on the moon? बोलो जल्दी. जल्दी 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 जल्दी. हाँ, आपको लगता है वैसा, देख रहे आप बता रहे कि यस T/6, पर दोस्तों पीरियड के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेफरेंस है क्या कहीं? नहीं है. तो फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बदलेगा क्या? तो वही रहेगा, तुम जाओ मून पे या जाओ मार्स पर, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट बी चेंज्ड. ओके, so what will be period of oscillation of a mass with the spring on the moon as well as Mars? It will be only capital T. It will be only capital T, capital T. Okay. अच्छा, दिन में कैपिटल टी तो रात में कितना? अरे मुंबई में कैपिटल टी तो कलकत्ता में कितना, तुम्हारे घर में कितना, कैपिटल टी ही सारे सब जगह एक ही. हाँ, यस इट इज. ओके, चलो. आप क्या किया दोस्तों, दोस्तों मेरे पास एक स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग को मैंने मास सस्पेंड कर दिया और कुछ उसकी लेंथ थी तो रहने दी उसकी लेंथ. ये देखो कितनी इलांगेट हो गई, है ना, इतनी इलांगेट हो गई वो. नाउ इंस्टेड ऑफ टोटल लेंथ आई यूज लेंथ डिफरेंट देन टोटल. मैं ये टोटल लेंथ के बदले थोड़ा सा कम लेंथ लेता, मतलब बीच में ही पकड़ लेता उसको ऐसा, इतना. हाँ, एंड नाउ मास इज सस्पेंडेड. तो क्या इलांगेशन पहले इतना ही हुआ, क्या कम हुआ या ज्यादा हुआ रे? कम हुआ ना. ओके 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 ओके. सो इलांगेशन कम हुआ तो क्या मैंने मास बदला क्या? अरे सस्पेंडेड मास तो वही है ना, मतलब अप्लाइड फोर्स तो वही है ना, इलांगेशन बदल गया. पर मुझे ये फॉर्मूला तो पता है, F इज इक्वल टू KX. कौन सा फॉर्मूला पता है? F इज इक्वल टू KX. If I use this spring of this much length and suspended some mass, okay, तो इतना मान लो इलांगेशन हुआ X. किसके कारण? ये वेट के कारण. अब दोस्तों मैं अगर
वही रिजिड सपोर्ट रखा और बस छोटी सी लेंथ ली एंड वही मास सस्पेंड किया, तो क्या इलांगेशन वही हो रहा है? तो क्या इलांगेशन वही होगा क्या? नहीं, इलांगेशन अलग होगा। बट हियर मास मतलब वेट mg, हियर आल्सो mg, इज इट सो? सो व्हाट इज चेंज्ड? व्हाट इज चेंज्ड? इलांगेशन अलग हुआ, तो क्या इसका अगर k फोर्स कांस्टेंट है तो इसका फोर्स कांस्टेंट बदलेगा ना? किस कारण बदल गया ये? फोर्स कांस्टेंट बदला है दोस्तों उसकी लेंथ के कारण। इज इट सो? सो क्या मेरी लेंथ कम होने से मेरा इलांगेशन कम हुआ कि नहीं? है ना? elongation directly proportional to x directly proportional to length of the spring. Shall I say F is equal to k1 x1 is equal to k2 x2, as if x directly proportional to L, we will write k1 L1 is equal to k2 L2. Are you agree with this? Have you understood this? k1 L1 is equal to k2 L2। अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ये मास, हाँ, इसकी लेंथ L, मास M। नाउ आई कट दिस स्प्रिंग इनटू टू इक्वल पीसेस, बोला क्या? और फिर वही मास सस्पेंड कर दिया। लेंथ कितनी? L/2। व्हाट विल बी इलांगेशन? व्हाट विल बी इलांगेशन नाउ? या व्हाट विल बी फोर्स कांस्टेंट नाउ? पहला फोर्स कांस्टेंट अगर k है तो नया फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। अगर मेरा k फोर्स कांस्टेंट पहला है तो दूसरा फोर्स कांस्टेंट कितना? विल इट बी k और डिफरेंट देन k? बस इतना बताना है आप लोगों को। विल इट बी k और डिफरेंट देन k? इट विल बी डिफरेंट देन के। ओके ओके ओके, चलो बात पहली थी दोस्तों, ये मेरी के एल है ना, पहला फोर्स था। अब अब क्या हुआ? अब हुआ है के डैश L/2। इसका मतलब मेरा ये यल यल कैंसल हुआ और के डैश मिलता है 2k। इसका मतलब लेंथ अगर आधी हो गई तो फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाता। आर यू गेटिंग दिस? है ना? तो क्या बता सकते हैं क्या? मैं अगर 1/3 लेंथ लिया तो, if I take the 1/3 length of the original spring, then what will be the force constant of that spring? It will be 3k. Yes, it is. It will be 3k. बात समझ में आ गई? ओके, वेरी नाइस। चलो तो फिर अब दोस्तों ये बात आप लोगों को पता चली कि लेंथ जितनी कम उतना फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, जितनी लेंथ ज्यादा उतना फोर्स कांस्टेंट कम। चलो अब क्या करता हूं मैं, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये जो आधा वायर मैंने जोड़ दिया, सॉरी आधा स्प्रिंग का टुकड़ा था वो मैंने फिर से जोड़ दिया और वही मास सस्पेंड किया। इसका था 2k, इसका भी था 2k। तो अब रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? अरे कनेक्शन कौन सा है ये? इस कनेक्शन को बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। यू नो दिस वेरी वेल, डोंट यू नो?
यस इट इज सीरीज कनेक्शन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? मैं आधा टुकड़ा फिर जोड़ दिया। चलो बताओ जल्दी, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? फोर्स कांस्टेंट, अरे बोलते कि नहीं कोई इतना समय करे। अरे वो पहली स्प्रिंग फिर से जोड़ दी तो पहला ही फोर्स कांस्टेंट आएगा ना। ए 5K वाली कौन है रे? पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो उसको, उसको पकड़ो, पकड़ो और खींचो बाल उसके। 5K कहां से लाए उन्हें? हाँ, तो ये फिर से क्या आने वाला है? इसका मतलब अभी थ्योरेटिकली कैसे डिराइव करेंगे? अरे भाई जो मेरा फोर्स है ये mg, ये mg फोर्स अकेले इसको है क्या? अकेले ऊपर वाले पार्ट को है क्या? दोनों भी पार्ट्स को सेम फोर्स है रे? बोलो बोलो। इज mg सेम टू लोअर एंड अपर, और ओनली लोअर और ओनली टू अपर? टू बोथ। हाँ, फोर्स तो दोनों को भी है ना? ऐसा तो नहीं ना कि नीचे वाले ने ज्यादा फोर्स लिया ऊपर वाले को कम, नीचे वाले पे फोर्स कम है ऊपर वाले को ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को सेम है। इसलिए जो फाइनल इलांगेशन होगा उस इलांगेशन की वैल्यू दोनों इलांगेशन के कारण होगी, है ना? इलांगेशन मैं एल के बदले ई लिख सकता, तो ये E1 होगा, E2 होगा, नहीं तो इसको एक्स बोलेंगे, रिजल्टेंट एक्स, इसको X1 बोलेंगे, इसको X2 बोलेंगे। अरे बोलने को कुछ भी बोलो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या ये मेरा F इज इक्वल टू के एक्स ऐसा जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है? तो अब मैं x की वैल्यू लिखूंगा F बाय के, है ना? F मतलब mg, नहीं लिखता बस होगा ना, अभी एक बार लिख देता। F इज इक्वल टू mg तो पता है सब लोगों को। तो F, सॉरी, तो F मैं लिख देता बगैर mg के, है ना? और ये रिजल्टेंट मेरा k है, ये k इन सीरीज। यहां वही फोर्स बोला आपने, मेरा K1 होगा, वही फोर्स बोला आपने मेरा K2 होगा। पर दोस्तों आप लोगों ने तो बोला था ना ये K1 इज इक्वल टू 2K, K2 इज इक्वल टू 2K, तो मैं लिख देता। एंड उसके पहले क्या करता? F कैंसल करता। ये हुआ सीरीज में 1/2K प्लस 1/2K, कितना? अरे ये कितना हुआ? ये हुआ 1/K, और हम तो पहले बोले थे कि K होने वाला है बोल के। है ना? K सीरीज में K हुआ। पर दोस्तों हम लोगों को जनरल फॉर्मूला अगर देखना है तो मैं फिर वो 2K की बात नहीं करूंगा। एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, एंड मास सस्पेंड किया है M, है ना? तो वेट नीचे mg, फिर ये mg जो फोर्स है वो फोर्स दोनों स्प्रिंग्स को है। यू हैव एक्सेप्टेड इट, है ना? अरे मानते ना? अच्छा, अब मानो इस फोर्स के कारण पहले स्प्रिंग में कुछ इलांगेशन हुआ होगा X1, दूसरे स्प्रिंग में कुछ इलांगेशन हुआ होगा X2, तो नेट इलांगेशन होगा पहले के कारण कुछ, दूसरे के कारण कुछ। विल इट बी? अच्छा, तो अब देखो दोस्तों, ये तो होगा F/K इन सीरीज, दूसरा होगा F/K1 प्लस
एफ बाय के टू, है ना? अरे होगा। फिर से मेरा एफ 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 कैंसल होगा। अच्छा, ऐसे अगर 10 क्वाइल्स लगा देते, 10 स्प्रिंग्स लगा देते, एन स्प्रिंग्स लगा देते तो क्या होता? फॉर्मूला बढ़ते जाता। फॉर्मूला क्या होता? 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/kn। ऐसा फॉर्मूला कभी हाई स्कूल में देखा था कि आपने किसी एक आधे चैप्टर में? अरे देखा होगा जरूर। हाँ, कहाँ कहाँ बताओ? कहाँ बता? हाँ, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन? क्या ऐसा फॉर्मूला सीरीज में था क्या पैरेलल में था? 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 एंड ऐसा लगा दिया सीरीज में। सर ले लो तुम गिफ्ट हमारे तरफ से, है ना? चलो दोस्तों, ये 1/ks की बात हो गई। अच्छा, अब पैरेलल की बात करेंगे। मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है, दो स्प्रिंग्स है, हम्म, और इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट K2 है। अब एक मास सस्पेंड किया है दोनों स्प्रिंग को, सो दैट वो रॉड जो सस्पेंड किया वाला रॉड है ना, ये हॉरिजॉन्टली रह जाए। भला क्या? तो ये मेरा mg था फोर्स नीचे के डायरेक्शन में। क्या ये mg फोर्स पहले कॉइल ने लिया या दूसरे कॉइल ने लिया या दोनों को सेम गया? क्या दोनों ने शेयर किया अपने अपने औकात से? ये mg दोनों को सेम है क्या? ये mg फोर्स दोनों को सेम है क्या? क्या F1 इज नॉट इक्वल टू F2 है? अपने अपने औकात से उठाया, क्या दोनों ने सेम शेयर किया? दोस्तों, ये दोनों ने सेम नहीं किया। अपने अपने औकात से उठाया उन्होंने, क्योंकि छोटा बच्चा और बड़ा आदमी अगर एक आधा वेट उठाने को लगते, दोनों साथ साथ उठाते, तो क्या वो दोनों का वेट सेम, दोनों ने सेम ताकत लगाए वाली रहती क्या? अपने अपने औकात से उसके ऊपर वो वेट चले गया, क्योंकि हमने बोला ना वो जो बेस है जिससे सस्पेंड किया वेट, वो हॉरिजॉन्टली रह जाए। समझेगा? तो वेट इज शेयर्ड बाय बोथ एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो देखेंगे फिर, देखेंगे फिर ये क्या होता। हमने बोला है कि जो नेट फोर्स है वो दोनों ने अपने अपने औकात से उठा लिया। वेट कितना है? mg है, पर हम बोलेंगे वेट के कारण कुछ इलोंगेशन होगा। वो अब पैरेलल कनेक्शन में आ गया। पर ये जो इलोंगेशन है, अगर अपना ये जो रेफरेंस लाइन है या हॉरिजॉन्टल अगर रहती है, तो क्या पहली स्प्रिंग जितनी इलोंगेट हुई उतनी स्प्रिंग दूसरी हुई क्या, उतनी ही इलोंगेशन दूसरी हुई क्या नहीं? आई एम रिपीटिंग, अगर मेरी पहली स्प्रिंग एक्स इलोंगेट होती है, तो दूसरी स्प्रिंग ही उतने से ही इलोंगेट होगी ना, और उतने ही एक्स से अपना मास नीचे आएगा ना, है ना? तो सारे जहां में यक्स 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 होगा ना। तुम ई बोल सकते इलांगेशन, तुम यल बॉक्स बोल सकते एक्सटेंशन, कुछ भी बोलो, लेकिन सेम होगा। इधर मेरी पहली और x1, नहीं x1 क्यों, x ही प्लस k2x। दोस्तों ए एक्स एक्स नमस्ते, है ना? एक्स एक्स नमस्ते, and therefore k in parallel is equal to k1 plus k2
अगर मेरे पास ऐसे n स्प्रिंग्स होते और पैरेलल में जोड़ देता तो फॉर्मूला बनता था K1 + K2 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस Kn। ऐसा फॉर्मूला हाई स्कूल में कभी देखा था क्या? देखा था तो कौन से कनेक्शन में? आप गलती नहीं करेंगे ना भाई। चलो दोस्तों, ये पैरेलल सीरीज ऐसा हो गया। हाँ, ओके हो गया। पर आप सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे और अपना पीरियड की बात करेंगे। ओके, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। चलो दोस्तों, इफ अ स्प्रिंग of force constant K is used to suspend the mass M, then period of oscillation is capital T. Okay. Now, if two springs of force constant K and 4K are connected in series and mass M is attached from free end, what will be period of oscillation? चलो बताओ, what will be period of oscillation? चलो भाई, period of oscillation will be root of 5/4t, पहला आंसर। दूसरा, T2 is equal to 5/4 कैपिटल T। तीसरा आंसर, पीरियड न्यू इज इक्वल टू 5/T/2 एंड चौथा आंसर, इट विल बी 5T। बोलो जल्दी जल्दी सब लोग। दोस्तों दोस्तों, ये तो है, ये सी करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। कैसे आया भाई? पता है हमें, पीरियड डैश इज इक्वल टू 2π√m/k डैश होगा। और के डैश कितना है? अगर दो स्प्रिंग्स होते तो हमें पता है K1 + K2 होगा, क्योंकि सीरीज में कैसा रहता, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2। तो सीरीज में के डैश K1 K2/K1 + K2। इज दिस सो? तो ये K1 है K2 है 4K, मतलब 1K इंटू 4K डिवाइडेड बाय K + 4K। तो ये हुआ है 4K² / 5K। तो ये K कैंसल, तो आया 4K/5। तो मैं इसे हटा देता, 4K/5 मतलब ये चले गए ऊपर। तो ये क्या हुआ, √5 टाइम्स 5/2 टाइम्स 2π√m/K। अरे यार, ये 2π√m/K तो कैपिटल T होता है।
और इसका मीनिंग हमारा आंसर ये हुआ। हैव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? पक्का? चलो, ओके, दूसरा प्रॉब्लम। रेडी? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन period of oscillation with a spring with a spring of force constant K is capital T. If it is connected in series with a coil or spring of force constant K by 4, then period of oscillation for same mass is dash 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 dash। चलो बताएंगे आप। चलो बताएंगे। सी एंड डी, मैं एक के नीचे दूसरा लिखता हूँ। बताओ। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। इसका मीनिंग है, इसलिए तो तुम्हें आउट ऑफ मार्क्स गिरे फिर। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में 120 मार्क्स लेने वाले झट से आंसर दे देते वो पहले ही। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे? बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k सीरीज होगा। और k सीरीज क्या होता? k1 k एंड k2 k/4। k1 k प्लस k2 k/4। तो यहाँ k²/4 इंटू 5k/4। ये 4 और 4 चले गए, k और k चले गए, k/5 बनता है ना। इसलिए ये जो ks है वो उसको हटा दे के k/5 लिखते, और वो तो रूट में आता ना। अब ये √5 बाहर लिया और लिखा फिर 2 पाई रूट ऑफ m/k।
तो 2 पाई रूट ऑफ m/k की वैल्यू तो t है, एंड वो √5 एज इट इज है, तो मेरा नया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा √5 इंटू टी। समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व करने के में कोई दिक्कत आएगी? नहीं ना? अच्छा, अब अब देखो, मैं स्टेटमेंट ही लिखता हूं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेशंस ऑफ मास m बाय अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is capital T. If other spring of force constant 3K is connected in parallel, then period of oscillations of same mass is T 2T T by 2 and 4T. चलो 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 चलो, आ गया। फास्ट ऑसिलेट होगा, वो फास्ट ऑसिलेट, पीरियड कम हो जाएगा। दोस्तों, पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट और m/k। अब नया पीरियड आएगा t पैरेलल इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/kp, पर kp होता है सम ऑफ k, and 1k is k, other k is 3k, so addition is 4k. So I will write directly here 4k. तो 4 बाहर निकाला तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आने से आंसर बनता है C। Have all of you understood? चलो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of mass m with a spring of constant K is T. If it is cut into 2 parts of length ratio 2:3,
then period of oscillation अरे रेशो का स्पेलिंग क्या लिखा मैंने? पीरियड ऑफ oscillations of same mass by shorter length is dash 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 dash. चलो बताओ अब। ए बी सी डी। चलो जल्दी। मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? क्योंकि आंसर भी मुझे अभी इमीडिएट देते नहीं आएंगे, है ना। सी, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम मैंने किताब में देख के लिया ऐसा नहीं है, या मैंने लर्न किया याद है और ऐसा बताया ऐसा भी नहीं है। चलो ये लेंथ है, इसके अभी असल में दो हिस्से किए हैं बुक में, मतलब बुक में सॉरी आपने प्रॉब्लम में। शॉर्टरच्या नंतर काय हे घ्या। हाँ, if it is cut into two parts of length ratio 2:3, then period of oscillation of same mass by shorter length is। हुआ क्या? देखा क्या? ओके। हाँ चलो, ये लेंथ है, प्रॉब्लम में इसे दो हिस्से में बांट दिया, उनकी लेंथ रेशियो है 2:3। हम क्या करेंगे, ये तीन 2:3 के एडिशन करेंगे, मतलब इतना एक हिस्सा, इतना एक हिस्सा और इतना एक, ऐसे 5 हिस्से में इक्वल बांट दिया। हेलो, 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अगर पूरे लेंथ की फोर्स कांस्टेंट के होती तो एक छोटे से हिस्से की फोर्स कांस्टेंट कितने रहे? कोई बताएगा? बिल्कुल बताएगा। अरे ऐसा कैसा रे, ऐसा कैसा रे, ऐसा कैसा रे? अरे K/5 कैसा रे? अरे रे 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 रे। संपूर्ण रामायण वाचून झाल्यानंतर सीतारामाची कोण, है ना? आम्ही म्हटलंय अहो सख्खी बहीण की बॉम्बला टाळ्या वाजवतील लोक नाही का आपल्यासाठी। 5K होगा। अब तुम्हें पता है अगर 5K और 5K ये दो हमने सीरीज में जोड़ दिया तो फिर उनका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? झट से बताओ। समय कहाँ है किसके पास? हाँ, ये आधा हो जाएगा 5K/2, 5/2K, है ना। 5/2K नहीं बोलने का, 5K/2 लिखने का टाइप करते समय। समझ गए? क्योंकि सीरीज में क्या होता, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता ना। मग K1 किती आहे? 5K, K2 किती आहे? 5K, म्हणून ते 2/5K होणार। सो Ks इज इक्वल टू 5K/2। अच्छा, अब देखो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। नया पीरियड इज इक्वल टू
एम बाय के शॉर्टर, है ना। के शॉर्टर की वैल्यू कितनी, के शॉर्टर की वैल्यू कितनी, 5k/2। पर ये तो होता है फिर √2/5 टाइम्स 2π√m/k। और इसे क्या बोला जाएगा, ये तो ओरिजिनल पीरियड है। सो नया पीरियड इज इक्वल टू √2/5 टाइम्स ओरिजिनल पीरियड। ये तुम्हारा उस केस में आंसर होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस दोस्तों? अरे कोई दिक्कत है समझने में? सब लोग खुश है ना? मोगैम्बो खुश हुआ ना? यस, सब लोग खुश है। चलो दोस्तों, ये हुआ शार्टर के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग ये एक स्प्रिंग है, अ स्प्रिंग is cut into cut into 3 parts। 3 equal parts ऐसा लिखेंगे, 3 equal parts। ओके, if two of them are connected in parallel and mass m is oscillated, then period of oscillation डैश डैश ब्रॅकेट मध्ये दिलंय k is force constant of original spring। चलो बताओ अब, फोर्स कांस्टंट ओरिजिनल स्प्रिंगचा किती, के। T/√6। अच्छा अच्छा, बर बर बर, ठीक है दोस्तों। अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है तो उसके एक हिस्से का कितना, k/3 नहीं तो 3k होगा, है ना। अच्छा, फिर अब ये 3k वाली सस्पेंड करते हम रिजिड सपोर्ट से, पैरेलल में जोड़ते और फिर मास सस्पेंड करते। दोस्तों ये 3k पैरेलल में बनती है k1 + k2, तो ये बनती है 3k + 3k इज इक्वल टू 6k।
तो बात तो सिंपल बन गई सर दोस्तों, नया पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/6k। ये है अपना फॉर्मूला। ओके। और आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, वो कैपिटल टी के भाषा में नहीं था प्रॉब्लेम, पण तुम्हाला ते टाईप करायला सोपं जावं म्हणून तुम्ही t/√6 टाईप केलं, मी ते समजून घेतलं, क्योंकि अपन एक ही गांव के एक ही क्लास के लोग हैं। तुम्हारी भाषा मैंने समझनी चाहिए, मेरी भाषा तुमने समझनी चाहिए कि नहीं? हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम कौन से भाषा में पूछा था? M&K के भाषा में। तो आपका आंसर भी उसी भाषा में होना चाहिए था, लेकिन आपने बराबर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज हैव यू अंडरस्टूड? चलना है आगे। ओके। राइट। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into three parts of lengths in the ratio 1:2:3. Okay. These parts are then connected in series and in parallel. What will be the ratio of period of oscillation in these cases? चलो बताएंगे हम लोग। मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन या कुछ भी हो सकता हो, अभी याद तो है नहीं मुझे, मतलब मैंने पाठ तो किया नहीं आंसर ये। एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, स्प्रिंग है ना? कैसी कट कर दी? 1:2:3 पार्ट्स में, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए रे? आइडेंटिकल पार्ट्स कितने हो गए सारे? हाँ। अरे भाई ये 6 हो गए। हाँ ये देखो, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। मतलब अपने पास स्प्रिंग लेंथ ये ऐसे दुगनी, ये 1, ये 2 और ये 3 वाली बनती है क्या नहीं? अच्छा, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये उसका फिर फोर्स कांस्टेंट के ही तो बनेगा। सो टी सीरीज विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/k ही तो होगा सीरीज में, है ना?
अच्छा, अब ये पैरेलल लगाने के बाद ये झंझट का काम है कि नहीं? कौन बताएगा ये एक छोटे से लेंथ का के कितना? ये तो 6K होता है ना? है ना? अच्छा, ये दूसरे लेंथ का कितना होगा रे, जिसके दो हिस्से है वो? 3K होगा। वेरी गुड। और ये बड़ा हिस्सा है उसका? उसका 2K होगा। ओके। अब के पैरेलल निकालो फिर। के पैरेलल होगा 11K। अरे वाह। हम्म। दोस्तों, ये टाइप के प्रॉब्लम बोर्ड को आएंगे नहीं, ये सारे तुम्हारे नीट एंड जेई के लिए है, बोर्ड के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए 6K कैसे आया, 3K कैसे आया, 2K कैसे आया, इनका मैथमेटिकल प्रूफ देना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर टी पीरियड पैरेलल में कितना आया? 2 पाई रूट ओवर m/11K। अरे होगा कि नहीं? होता है क्या नहीं? तो फिर रेशियो क्या होगा? टी सीरीज अपॉन टी पैरेलल इज इक्वल टू √11/1 होगा कि नहीं? दोस्तों, स्प्रिंग is cut such that L2 is equal to NL1. Hmm? L2 is equal to NL1. Then period T2 equal to how much? पहिल्या पिरियडच्या भाषेत सांगायचं। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।